Okay, so very welcome to all of the students. Now today in application of derivative, we are going to move on to the next part of the topic, that is nothing but type 8 maxima and minima. Now again, this is also very important part of the topic. So please write down this heading today. Type 8 heading दे दीजिए आप maxima minima. Don't worry, I'll explain you all with the help of graphical representation. Maxima or minima exactly means what. So write down under this आप लिखिए if y is equal to fx is a real valued function of x, तो अगर कोई भी फंक्शन डिफाइंड है y is equal to f of x which is a real valued function of x, तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन के लिए होता क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड बाय ड्राइंग अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ओके, सो प्लीज ड्रॉ दिस अलोंग विथ मी. ये हमारा y एक्सिस है एंड ये हमारा x एक्सिस है. Now, if I am drawing graph of any function, then what is going to happen? What is exactly maxima and minima? वो हम function के लिए understand करेंगे. ठीक है, चलो please draw this coordinate axis first of all, students. तो जब तक आप ये draw करते हैं, मैं एक function का graph draw कर लेता हूँ. ठीक है, एंड सो ऑन ऐसा कंटिन्यू होगा. So just draw this graph. A rough diagram will do for understanding. Now, this y is equal to fx is a real valued function of x. Now, right now this graph you can see, ये जो y is equal to fx का graph है, फिलहाल ये continuous है. So now what I'm going to do is, let us take few points over here. So let us say this point is point C1. Start drawing along with me and start writing down. And say ये दूसरा point है. This is the point x is equal to C2. X is equal to, understood है. This is another point C2. This is x is equal to C3 point है. ये x is equal to C4 वाला point है. अब ये जो ग्राफ में ये पॉइंट है, थोड़ा मैं इसको, ये ऑलमोस्ट इक्वल हो गए, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ. आई विल जस्ट ड्रॉ दिस ग्राफ में, तो मैं थोड़ा सब बड़ा कर देता हूँ. जस्ट मेक दिस बिगर देन दिस. ये इससे बड़ा कर देता हूँ. ठीक है, देन आई टेक दिस पॉइंट एज, ये x इज इक्वल टू C5 पॉइंट है. दिस इज C6, this is C7, and say this is point C8. Total 8 points I have taken. Now, what is going to happen at these points? You observe this function is defined on some interval. So, अगर आप ये देखोगे तो this graph is sometimes decreasing, sometimes increasing. Means it is non-monotonic. We have done monotonicity, increasing and decreasing function का concept हमने last time already complete किया है. तो वही same concept इसी से connected है. आगे maxima minima पढ़ रहे हैं. तो ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, फिर कुछ इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, अगेन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीज इंक्रीज, ऐसा चल रहा है वो. So now what is going to happen if you observe over here all these points that are below. Now minima and maxima and minima. So maxima means it is point of maxima and minima means it is point of minima. ठीक है, मतलब उस पॉइंट पे जो मिनिमम वैल्यू देगा दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ मिनिमा, और उस पॉइंट पे जो मैक्सिमम वैल्यू देगा दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा.
नाउ कौन से पॉइंट्स मिनिमम वैल्यू देंगे? तो लेट अस राइट डाउन, फर्स्ट यू ड्रॉ दिस। ये सारे पॉइंट्स को मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ। These are all the points that we have taken. So now first you write down, draw this, and then after you write down this, the points of minima कौन से हैं? Write down on the next line. We are going to write down, students, points of minima. मतलब जिसपे मिनिमम वैल्यू देगा वो हमें। तो पॉइंट्स ऑफ मिनिमा मतलब जो नीचे वाले पॉइंट्स है वो सारे हमें मिनिमम वैल्यूज देंगे। तो विच आर पॉइंट्स ऑफ मिनिमा? वन इज पॉइंट C1, मीन्स दिस इज x इज इक्वल टू C1। अंडरस्टूड है? चलो लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू C1। C1 पे मिनिमम वैल्यू आएगा नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं। फिर C3, देन नेक्स्ट पॉइंट इज C5, नेक्स्ट पॉइंट इज C7, ये सब पे मिनिमम वैल्यू आएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ मिनिमा। मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू सभी पॉइंट्स पे मिनिमम रहेगा, कम रहेगा। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ मिनिमा, और ऑल्सो इट इज नोन एज नथिंग बट लोकल मिनिमा। इसको हम ऐसा भी बोलते हैं, लोकल मिनिमा। ये सभी पॉइंट्स पे कम वैल्यूज रहेंगे, ठीक है। बट नाउ व्हाट विल हैपन, ये सभी पॉइंट्स पे वैल्यू कम रहेंगे, बट इसमें से एक पॉइंट ऐसा भी होगा जहां पे सबसे कम वैल्यू आएगा। तो सी ग्राफिकली C1, C3, C5 एंड C7, तो सबसे कम वैल्यू आपको क्या दिख रहा है? सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा है? सबसे नीचे वाला पॉइंट C5 है। तो एट दिस पॉइंट C5, दिस विल बी पॉइंट ऑफ, आई राइट डाउन फॉर योर रेफरेंस, ये जो पॉइंट C5 है ना, तो x इज इक्वल टू C5 इज पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मतलब सबसे कम वैल्यू यहीं पे आएगा। C1, C3, C5 और C7 में जो फंक्शन का जब हम वैल्यू डालेंगे, ये सब पॉइंट्स हम फंक्शन में डालेंगे, तो सबसे कम वैल्यू C5 पे आएगा। Therefore x is equal to C5 is called as point of absolute minima, मतलब सबसे कम वैल्यू आएगा। वैसे तो कम C1 पे भी आएगा, C3 पे भी मिनिमा ही मिलेगा, बट ये सारे मिनिमा के पॉइंट्स है, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज ऑल्सो लोकल मिनिमा, लोकल में। एंड सबसे कम वैल्यू पॉइंट C5 पे आएगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। Am I clear with this absolute minima का मतलब, everyone? Yes, sir. ठीक है ना? तो प्लीज नोट डाउन एब्सोल्यूट मिनिमा, या इसको ऐसा भी बोलते हैं हम ग्लोबल मिनिमा। यू नो द वर्ड मीनिंग, आपको पता होगा, ग्लोबल। ग्लोबल मिनिमा भी हम इसको बोलते हैं। मतलब अगर मैं ये C5 का वैल्यू फंक्शन में डालू ना, तो इफ यू वांट आई राइट डाउन फॉर योर रेफरेंस, देयरफॉर f of C5, x का वैल्यू C5, जब हम C5 पॉइंट वहां पे डालूंगा, तो f of C5 has absolute minimum value, has absolute, has absolute, one second, has absolute मिनिमम वैल्यू। सबसे कम वैल्यू किस पॉइंट पे होगा? पॉइंट C5 पे होगा। प्लीज राइट डाउन। वैसे ही पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा होते हैं, तो आई राइट डाउन ओवर हियर पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा। थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा x इज इक्वल टू, अब जहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट्स पे मिलेगा? चेक, जो ऊपर वाले पॉइंट्स है। एक तो पॉइंट C2 पे मिलेगा, अनदर विल बी एट पॉइंट C4, अनदर विल बी एट पॉइंट C6, अनदर एट पॉइंट C8, और ऐसे हो सकता है बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। So they are called as points of maxima,
सभी पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नथिंग बट पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा। बट इसमें से एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू आएगा। तो टेल मी, ऐसा कौन सा पॉइंट आपको दिख रहा है जहां पे मैक्सिमम, एकदम मैक्सिमम वैल्यू आएगा? C6। एब्सोल्युटली, दैट पॉइंट इज नथिंग बट C6। एकदम देखो, एकदम ऊपर है, एट द टॉप, टॉप ऑफ द हिल। आपने हिल देखा ना कैसा होता है, ऐसा ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एकदम टॉप ऑफ द हिल पे है, एकदम टॉप पे जो बैठा है। So that point is nothing but x is equal to C6 is point of absolute maxima. ऐसा लिख लो, is point of absolute maxima, or also called as global maxima भी हम इसको बोलते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो ये जब C6 का वैल्यू फंक्शन में डालेंगे ना, तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आएगा C6 पॉइंट पे। So we can say therefore f of C6 as absolute maximum value। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्राफ है। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू दिस इन एग्जाम की ग्राफ ड्रॉ करके बताओ, बट ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आई एम गिविंग यू द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ओके, प्लीज नोट डाउन with the graph and write down the things that I have written on the board. So what does this mean, students? I repeat, maxima and minima means it is nothing but point of maxima and point of minima. So point of minima मतलब जहाँ पे मिनिमम वैल्यूज मिलते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा पॉइंट्स हो जहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिले, फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है ना। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लोकल मिनिमा पॉइंट्स। जब मिनिमा वर्ड यूज करता है मतलब पॉइंट्स के बारे में बात करता है, वो इज टॉकिंग अबाउट द पॉइंट्स एंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा। तो इज टॉकिंग अबाउट मैक्सिमा मींस इज टॉकिंग अबाउट द पॉइंट्स जहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा एंड इट इज ऑल्सो नोन एज लोकल मैक्सिमा। तो सिर्फ मिनिमा या लोकल मिनिमा वर्ड यूज किया तो मीनिंग सेम है, मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमा वर्ड यूज किया तो भी मीनिंग सेम है, ठीक है ना। So this is what you need to understand. Please note down, then we'll move ahead. Now let us understand the meaning of the word extremum. Extremum मतलब वही either maxima और minima. So वो जो ग्राफ मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया स्टूडेंट्स, उसको थोड़ा जरा हम थोड़ा सा डिटेल में ले लेते हैं। So just pay attention. Now this word, when I say extremum, means it is maxima or minima. Now let me again explain you graphically. अब वो जो ग्राफ है ना, उसका एक मैं छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ, just pay attention। और जो प्रीवियस ग्राफ मैंने ड्रॉ किया था, now suppose if I am, ये ग्राफ है ना, ग्राफ का एक पार्ट है which I have drawn over here. Now if you observe over here, एक पॉइंट ऐसा होगा, this point say x is equal to a, ये पॉइंट है x is equal to a, तो दिस पॉइंट x is equal to a बोलो, c बोलो, c1 बोलो, whatever। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग इसको हम ले लेते हैं x is equal to a पॉइंट, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। तो नाउ व्हाई सो, ऑब्जर्व ओवर हियर, सपोज ये पॉइंट मैंने ले लिया x is equal to a। नाउ a के लेफ्ट में जो पॉइंट रहेगा, नाउ सपोज इफ आई टेक अ पॉइंट ओवर हियर, ठीक है, तो दिस पॉइंट विल बी नथिंग बट, ये होगा a माइनस एच। ये देखो ये पॉइंट है x इज इक्वल टू a, या सिर्फ ऐसा लिखता हूँ, दिस इज पॉइंट a। तो a के लेफ्ट में a माइनस एच होगा एंड a के राइट में प्लस, तो दिस विल बी नथिंग बट a प्लस एच वाला पॉइंट। तो अगर आप ग्राफिकली देखोगे यहाँ पे, तो ओवर हियर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा, x इज इक्वल टू a पे आएगा ना। सबसे ऊपर पॉइंट तो ये है, ये देखो थोड़ा नीचे है,
a plus h is also down and a minus h is also down. तो सबसे ऊपर पॉइंट कौन सा है? x is equal to a है. तो इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा. तो इट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. So here x is equal to a is called as point of maxima. अच्छा, सिमिलरली ग्राफ का एक मैं छोटा सा पार्ट उठा लेता हूँ, उल्टा कर देता हूँ इस ग्राफ को. आई जस्ट रिवर्स इट आउट. तो नाउ इफ आई ये वाला पार्ट ले लेते हैं हम. अभी आप समझो कि ये दिस इज पॉइंट x इज इक्वल टू a. तो a के लेफ्ट में देयर विल बी वन पॉइंट विच विल बी a माइनस h. a के नेबरहुड में, नेबरहुड वी कैन से, यू नो, आजू बाजू में, लाइक योर नेबरहुड इज समवन एल्स. तो ये a का नेबरहुड है, एडजेसेंट साइड में जो रहता है. तो a के नेबरहुड में a माइनस h है. दिस इज मैथमेटिकल लैंग्वेज है, नेबरहुड. एंड a के राइट वाले नेबरहुड में दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज a प्लस h. तो कैन एनीवन टेल मी बाय सीइंग ग्राफिकली a माइनस h पे कम वैल्यू आएगा कि a पे कम वैल्यू आएगा कि a प्लस h पे कम वैल्यू आएगा? सबसे कम वैल्यू किधर आएगा? एब्सोल्युटली करेक्ट, a पे आएगा. देखो ये जो a माइनस h है थोड़ा सा ऊपर है a से, तो शायद से मे बी आपको दिख नहीं रहा होगा. x इज इक्वल टू a सबसे कम है. तो हियर दिस पॉइंट x इज इक्वल टू a इन दिस ग्राफ, x इज इक्वल टू a is called as, you can write down, is called as point of minima. ठीक है, write down. So x is equal to a. पे इस ग्राफ में we have got x is equal to a is called as point of maxima, जहां पे हमें मैक्सिमम वैल्यू आएगा. सब पे, इस पे भी मैक्सिमम वैल्यू आएगा, इस पे भी मैक्सिमम वैल्यू आएगा, इस पे मैक्सिमम. सबसे ज्यादा वैल्यू मैक्सिमम किस पे आएगा? a पे आएगा, एब्सोल्यूट सबसे ज्यादा. और सबसे कम वैल्यू इस वाले ग्राफ में x इज इक्वल टू a पे आएगा. ठीक है, नाउ बट एज वी नो स्टूडेंट्स कि ये जब हम मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं, तो वी कैन ड्रॉ टेंजेंट्स टू दिस, है ना. टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं यहाँ पे. तो जब मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, जस्ट पे अटेंशन, इफ आई ड्रॉ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, ठीक है ना. अभी ये टेंजेंट है यहाँ पे इस पॉइंट पे. जस्ट गिव मी 1 मिनट. ये पॉइंट है, इस पे ये टेंजेंट है. दिस इज L1. एक ये पॉइंट है, इस पे टेंजेंट है. दिस इज अनदर टेंजेंट से L2. दिस इज L1, दिस इज L2. और एक टेंजेंट इधर भी ड्रॉ हो सकता है. बहुत सारे टेंजेंट, तो कैन ड्रॉ एज मेनी यू वांट. एट अ यूनिक पॉइंट, एट अ सिंगल पॉइंट देयर इज अ यूनिक टेंजेंट एंड दिस इज टेंजेंट L3. तो ये जो L1 का स्लोप होगा ना, आप देखो L1 अगर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ तो L1 का स्लोप इज पॉजिटिव. तो f dash of x will be greater than 0. L1 के लिए, for L1, for line L1, f dash of x will be greater than 0. यही तो किया हमने, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. देखो ना, फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है. तो L1 के लिए, लाइन L1 के लिए f dash of x is greater than 0. For line L3, for line L3, f dash of x is less than 0. And for the line L2, you'll observe f dash of x is equal to 0. इस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव 0 है, means you observe line L2 is parallel to x axis. L2 लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है. तो इसमें क्या होगा, दोनों डायग्राम में सेम होगा. इधर भी 3 टेंजेंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स है तो 3 टेंजेंट्स. इधर भी 3 टेंजेंट हो गए. एक का स्लोप पॉजिटिव L1 का, आई हैव टोल्ड टू यू, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. ये कंसेप्ट मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. ठीक है, तो जहां पे f dash of x 0 होता है, नोट डाउन, वेयर f dash of x becomes equal to 0,
there we get values of x, we obtain value or values of x. वो इक्वेशन पे डिपेंड करेगा, मतलब अगर फंक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका डेरिवेटिव लेंगे तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। अब लीनियर इक्वेशन हो जाएगा तो एक ही वैल्यू मिलेगा। बच्चे अगर क्यूबिक इक्वेशन है, वी हैव डन इट अर्लियर, क्यूबिक इक्वेशन है तो डेरिवेटिव लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा तो x के दो वैल्यूज मिलेंगे। तो वेयर f dash of x becomes equal to 0, we obtain value or values of x. अब these value और values of x जो है ना, उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। So that first name is called as stationary point, ऐसा बोलते हैं। स्टेशनरी पॉइंट्स, जो x के वैल्यूज मिलते हैं ना, x इज इक्वल टू a, दिस इज अ स्टेशनरी पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो स्टेशनरी पॉइंट और पॉइंट्स वॉट एवर इट इज, फिर उसको हम बोलते हैं, दूसरे वर्ड यूज करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स, प्लीज नोट डाउन है, ये सब इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल पॉइंट्स के बाद थर्ड वन जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स और टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट्स भी हम इसको बोलते हैं। तो मीनिंग सेम। तो व्हेन दे आर टेलिंग यू स्टेशनरी पॉइंट, मतलब आप याद रखो x के वैल्यूज, क्रिटिकल पॉइंट मतलब x के वैल्यूज, एंड टर्निंग पॉइंट्स मींस x के वैल्यूज। तो जनरली तो दे यूज द वर्ड स्टेशनरी पॉइंट्स ओनली, ज्यादा करके आपको यही वर्ड दिखेगा, स्टेशनरी पॉइंट्स। ठीक है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। I hope everyone understood with this what I explained. Yes. Okay. ठीक है ना, तो इन पॉइंट्स पे फंक्शन इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ना, मतलब स्टेशनरी है। f dash of x equal to 0 पैरेलल टू x एक्सिस, दैट इज व्हाट इट मीन्स। इधर भी वैसे ही तीनों टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। इधर एक टेंजेंट होगा, ठीक है, दिस इज टेंजेंट 1, ठीक है, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, दिस इज टेंजेंट 2, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, दिस इज टेंजेंट 3, T3। तो अगर आप देखोगे T3 का स्लोप, ये जो थीटा एंगल है, T3 का स्लोप, तो T3 का स्लोप विल बी ग्रेटर देन 0, f dash of x ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी f dash of x विल बी थीटा ना, f dash of x विल बी लेसर देन 0। वन सेकेंड, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा ना, T3 का स्लोप पॉजिटिव होगा। हाँ, तो f dash of x विल बी ग्रेटर देन 0, हियर f dash of x विल बी लेस देन 0, इसका स्लोप नेगेटिव होगा। ऐसा लाइन है, मतलब इसका स्लोप नेगेटिव होगा। देखो ना, L3 का स्लोप क्या है, नेगेटिव। तो ऐसे जितने भी लाइन है ऐसा, इट इज दिस वे मीन्स स्लोप इज नेगेटिव, दिस वे मीन्स स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव, एंड दिस वे मीन्स स्लोप इज 0, T1 का स्लोप 0 हो जाएगा, बिकॉज इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। So this is the detailed explanation of maxima and minima। ठीक है, अभी इसका वर्किंग रूल है, इसमें अभी दो है, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। प्रॉब्लम दोनों से सॉल्व हो सकता है, बट वी विल बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम ओनली बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि एग्जाम में ऐसा मेंशन नहीं होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करना है या सेकंड डेरिवेटिव। तो वी विल बी यूजिंग द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ओनली। डोंट वरी, आई विल गिव यू द वर्किंग रूल आल्सो, बट बिफोर दैट नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स, अभी मैक्सिमा एंड मिनिमा में सी द वर्किंग रूल, मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोसीजर है उसका एक पर्टिकुलर रूल है, एंड एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एज आई सेड, दिस इज कॉल्ड एज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इस आप नाम दे दो इसको, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। नाम वैसे मालूम होना चाहिए, एग्जाम में मेंशन नहीं रहता है, बट हम यही यूज करेंगे। So what does the rule say?
Step number 1, consider the given function y is equal to fx. Then we find out f dash of x and f double dash of x. डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इसलिए इसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं. Step number 2, what do we do? Equate f dash of x with equal to 0, parallel to x axis. Why? Because we want stationary points. तो stationary points वहां पे मिलेंगे जहां पे डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. So f dash of x equal to 0 and get the values of x. They are also called as stationary points, critical points, है ना, extreme points. फिर step number 3, substitute the values of x in f double dash of x. तो जो x के वैल्यूज आएंगे वो f डबल डैश ऑफ x में डाल के साइन को हमें चेक करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. फोर्थ स्टेप, कंडीशन 1, अगर f डबल डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 आया, मतलब जो भी x का वैल्यू आएगा हम डबल डैश में डालेंगे. अगर f डबल डैश ऑफ x पॉजिटिव आया तो मिनिमा अकर्स एट दैट पॉइंट. जरा ये उल्टा ही है, ऐसा ही है. मिनिमा अकर्स, मैक्सिमा डज नॉट अकर. मिनिमा अकर्स एट दैट पॉइंट, मतलब फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे मिनिमम रहेगा, मिनिमा, और यू कैन से पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा भी बोलते हैं. So if f double dash of x is greater than 0, then minima occurs at that point. So minima occurs है तो function will have minimum value at that point. And if f double dash of x is less than 0, then maxima occurs at that point. Underline ना, maxima occurs at that point. मतलब function का value उस point पे maximum मिलेगा जब f double dash of x less than 0 है. उल्टा है ये, ग्रेटर है तो मिनिमा मिलता है, लेस है तो मैक्सिमम मिलता है, ऐसे याद रखो आप. और अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है ना, ये पॉइंट्स देगा. दिस विल गिव अस द पॉइंट्स एट विच इट इज मैक्सिमम मिनिमा. बट अगर फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए तो जो x के वैल्यूज है ना, जो स्टेशनरी पॉइंट्स है, वो हमें फंक्शन में डालने पड़ेंगे. दैट इज व्हाट इज रिटन. To find the minimum and the maximum value of the function, put values of x in fx. तो ये ऐसा पूरा वर्किंग रूल हमें यूज करना है मैक्सिमा मिनिमा के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए. ओके, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर. नाउ आई कैन नॉट कीप दिस पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ यू क्योंकि जो एग्जाम्पल सॉल्व करना है उसमें प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदियर है, बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. दिस इज all the problems are dependent on this working rule only. So initially तो function दे रहेंगे, फिर हमें word problems पे भी जाना है. There are word problems also that we need to do in. So please make a note, then we'll move ahead. अच्छे से पूरा थियरी आपको मैंने समझा दिया है. मैक्सिमा मिनिमा विथ डायग्राम, विथ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, उसका क्या मीनिंग होता है, विथ वर्किंग रूल. ओके, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस.